Children, you all are getting my voice? Yes, sir. Hello, everyone. Voice is properly. Yes, sir. Your voice is properly. No, Shreya Jha is not getting my voice. That's why I'm asking. No, sir. Yasha is not hearing your voice. Okay, now children, so all of you please open the page number 46, the health hazards in the sericulture. देखो बच्चों, सेरिकल्चर में हेल्थ हजार्ड कौन कौन से होते हैं ये आप सभी लोगों को मालूम है. yesterday we had gone through about some of the points. कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, है ना. कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने कल जाना था. नाउ आई वांट टू रिमाइंड हियर, नाउ एज पर द डायग्राम विच यू ऑल आर सीइंग हियर, आप जो डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ द विंड पाइप and these are the two bronchi. Okay, bronchi. Now yesterday you all have studied that the people will suffer from the bronchitis. Okay, why the bronchitis will be occur to them? Because they are continuously working from 12 to 16 hours nearby the fire, nearby the heat. Okay, whenever there will be a production of heat, then that heat will emerge CO2. मतलब जैसे आप वाटर को बॉईल करते हो, भाई कुकुम को बॉईल करने के लिए आप वाटर को हीट करते हो, ठीक है. जब कभी भी आप वाटर को हीट करोगे के लिए आप यूज करोगे फ्यूल का. सो इफ यू आर यूजिंग द फ्यूल देन देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ CO2. वहां पर CO2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना. CO2 का फॉर्मेशन होगा, उस CO2 का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा. सिंस यू आर वर्किंग इन अ क्लोज्ड एरिया वेयर द नेचुरल एयर वुड नॉट बी एबल टू कम इन टच विथ यू डायरेक्टली. ओके, सो यू विल ऑल्सो बी इन टच विथ CO2. यू विल ऑल्सो बी इन टच विथ CO2. आप CO2 के साथ भी टच में रहोगे. ओके, so whatever the oxygen or whatever the air which you are trying to take in your body, that air will have the maximum content of CO2. That CO2 should not go in your body, but by chance at anyhow it is going on, it is going, which should not be. Okay, नहीं जाना चाहिए था लेकिन वो जा रही. Then ultimately the result will be the bronchitis. The bronchus will receive a large amount of particles which are not good for the health of a normal person. ठीक है. So this was the thing. All of you now see the first point. Handling of the dead worms with bare hands contributes to infection and illness. खुले हाथों से अगर आप डेड वर्म्स को हैंडल करोगे तो आपको और प्रोड्यूस होने वाले फाइबर दोनों को ही इंफेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे. आपको और प्रोड्यूस होने वाले फाइबर दोनों को ही इंफेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे. वर्कर्स जनरली नीड टू डिप देयर बेयर हैंड इनटू द हॉट वाटर एंड जज बाय टच वेदर द फाइन थ्रेड्स ऑफ द सिल्क हैव loosened enough to be wounded. मतलब उनको गर्म पानी में बार बार अपने हाथ डाल करके cocoons को चेक करना पड़ता है कि whether the cocoons have reached in a condition where they can be reeled up or not. भाई जो cocoons थे वो हार्ड थे, लेकिन अब जब cocoons को आप हॉट वाटर में बॉईल कर रहे हो, then it will be observed whether these cocoons has been loosened or not. ठीक है. Now this causes blisters and open wound injuries leading to infection. मान लीजिए अगर आपके हाथ में पहले से इंजरी है या आपको पहले से चोट लगी हुई है ना, इस कंडीशन में अगर आप अपने हाथों को बार बार उन डेड बॉडीज के बीच में डालोगे,
then what will happen? There will be a chances of infection to you also, and there will be a danger to the fiber also, है ना? कि मान लो अगर आपके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है, आपके हाथ में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन वाटर के थ्रू होते हुए फाइबर्स में चला जाएगा। फिर ये फाइबर जहां जहां जाएगा वहां वहां लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस परसिस्ट करेंगे, ठीक है? ऑन द अदर वे, if the silkworm was having the infection, don't forget the warm water is having the dead bodies. Warm water is having the dead bodies, okay? And the dead bodies are not good, okay? So this was the overall understanding of the first point, which we have ended just now. Now the second number. All of you now see here, standing almost continuously for about 12 to 16 hours a day, reeling the fine silk thread may lead to health disorders like backache, spine and vision related problems. Standing almost continuously for about 12 to 16 hours a day, एक दिन में 12 से 16 घंटे तक लगातार उनको खड़े होकर काम करना पड़ता है। Reeling the fine silk thread may lead to health disorder. मतलब इतने घंटे काम करने की वजह से आप लगातार रीलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है? मतलब कुकुन हॉट वाटर में लूज हो रहा है और उस लूज कुकुन से जो थ्रेड्स हैं, जो सिल्क फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स को आप निकालने का काम कर रहे हो। यू आर डूइंग द वर्क ऑफ रीलिंग, ठीक है? तो रीलिंग का काम जब आप करोगे तो रील को चलाने वाले वहां पे मशीन्स रहेंगी, है ना, जिसकी वजह से वो रील गोल गोल घूमेगा। तो जैसे ही आप वहां पे फाइबर को अटैच करोगे, पूरा का पूरा फाइबर रील के ऊपर राउंड फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? May lead to the health disorders like backache, spine and vision related problems. हमारे पीठ में दर्द, हमारे जो बैकबोन है, बैकबोन में दर्द होना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना, और मे बी प्रॉब्लम इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर विजन, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करेंगे, मीन्स ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्कर्स फेस करेंगे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट नंबर, वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग cocoons and diesel fumes form machines. Vapors from boiling cocoons and diesel. Vapors from boiling cocoons and diesel. Vapors from boiling cocoons and diesel fumes form machines may lead to respiratory disease such as asthma and bronchitis. मतलब जिस गर्म पानी में आप जिस वाटर को आप बॉईल कर रहे हो, याद रखो उस वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा है, ठीक है? और उस वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो वहां पर इवापोरेशन भी होगा, ठीक है? वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग cocoons एंड द डीजल फ्यूम्स, जिस डीजल का आप यूज कर रहे हो फायर को बर्न करने के लिए, और जिस वाटर का यूज कर रहे हो आप हीट करने के लिए, led to the respiratory disease such as asthma and bronchitis. इनकी वजह से आप लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। बच्चों, हम लोगों ने कल अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को पढ़ लिया था। अभी अभी सुबह हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस को पढ़ा है और अस्थमा को भी कल हमने पढ़ा था, ठीक है? बार बार खांसी आती है अस्थमा में। एक बार खांसी आना शुरू हो जाए तो 2-3 मिनट तक लगातार खांसी आती ही रहेगी। चलो, now the fourth number, continuous exposure to the noise made by spinning and winding machines. Continuous exposure to the noise made by spinning and the winding machines and looms where the fabric is woven may result in the hearing disorders.
तो लगातार स्पिनिंग मशीन्स और विंडिंग मशीन्स के रन होने की वजह से with the help of spinning machine the fibers will be collected and all the fibers will combinedly get a chance to get convert into the fiber or the filament or all the fine fibers will get a chance to get convert into the filament, to get convert into the thread. Okay, and this thread will be used further for the formation of clothes by the process of weaving and knitting. Excuse me. Yes. Now the vapors from boiling cocoons and the okay. हाँ तो बेटा देखो, यहाँ पर विंडिंग मशीन और स्पिनिंग मशीन के लगातार मूव करने की वजह से स्पिनिंग मशीन काफी स्पीड से गोल गोल घूमेगी और विंडिंग मशीन लगातार आपके थ्रू सेपरेट किए हुए फाइबर्स को सुखाने का काम करेगी। इससे क्या होगा कि आपके फाइबर्स सूख जाएंगे और बड़े बड़े मिल्स में हमको, जो क्लॉथ मिल्स हैं, वहां पर हम इसको भेज देंगे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए स्पिनिंग मशीन बहुत स्पीड से घूमेगी और विंडिंग मशीन भी काफी स्पीड से काम करेंगी। तो इन दोनों के लगातार काम करने की वजह से वहां पर काफी हाई अमाउंट में साउंड का प्रोडक्शन होगा। देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड एट वेरी लार्जर स्केल बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नॉट गोइंग ऑन एट अ सिंगल प्लेस. There are a lot of places where the production of silkworm is going on. At all the places we need winding machines. So all the winding machines and all the spinning machines, when they all will move, then there will be a noise pollution inside the wool production area. Okay? This may cause to the hearing disorders to the workers, those who are working in the silk industry. Am I clear to everyone? बच्चों मुझे बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, बताइए। No doubt. No sir. पक्का? आगे बढ़े। चलिए। Yes sir. चलो, डिस्कवरी ऑफ सिल्क उसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द होमवर्क विच आई हैड गिवन यू यस्टरडे, हाँ, लेट्स डिस्कस दिया था ना मैंने आपको, सेरिकल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एज एन इको फ्रेंडली एक्टिविटी. व्हाई? द ब्लू बॉक्स ऑन द पेज नंबर 46. पेज नंबर 46, द ब्लू बॉक्स विच हैज बीन गिवन हियर. कल मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि सर मुझे आंसर अभी आता है, लेकिन मैंने आज वेट होने के लिए कहा था, वेट करने के लिए कहा था. चलिए बताइए, who know the answer? सर हरमन. मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, आप लोग बोल सकते हो. सर मैं ऐसे द आंसर. बोलो बेटा. हाँ बेटा बोलो. Yes sir. Sericulture is not considered as an eco-friendly activity because in the sericulture the cocoons are put in the hot water and the cocoons are formed by silkworms. Inside the cocoons there are silkworms. After putting in the hot water, the silkworms dies. And what is eco-friendly? In the eco-friendly we call it save the environment. All the living beings and animals live together and make an eco-friendly system. So if we will die the animals, so it is not very good. So it will not consider as an eco-friendly system. To get the silk, we dye the silkworms at the 6,000, 7,000 at the rate. So we should not do like that. That's why it is considered as an not eco-friendly activity. Okay. So your logic is the earthworm will work along with the other animals or with the other pests. So this will not happening since we are killing them. क्योंकि हम उनको मार देते हैं, इसलिए ये काम नहीं हो पाता है. आपका ये कहना है कि क्योंकि सिल्कवॉर्म
बाकी सारे एनिमल्स के साथ काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस एक्टिविटी को हम इको फ्रेंडली नहीं मानेंगे, है ना? यही कहना चाहते हो ना आप? No sir, earthworm is same to all the animals, but eco-friendly system means that all the animals, birds, living organisms, to ant also makes the eco-friendly system. They should have a right to live with everyone. Then we will kill the silkworm. It is not good. It is very bad, and it will create an eco-friendly system. It is not eco-friendly activity. We are killing for our self for silk production. देखो बेटा हरमन, इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा आप कुछ और समझ गए हो। देखो, इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक्टिविटी का बैड इम्पैक्ट हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेचुरल सिस्टम पे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं आई वांट टू कट द ट्रीज, तो मुझे ट्रीज काटने हैं, तो ट्रीज को अगर आप कट करोगे तो इसका बैड इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ेगा। कौन सा सिस्टम? जो पहले से बना हुआ है ना भाई। प्लांट से ऑक्सीजन बाहर निकलना, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब CO2, प्लांट्स विल रिलीज O2। ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये सिस्टम पहले से बना हुआ था। अब मेरे एक्टिविटी करने की वजह से, मेरे प्लांट्स को कट करने की वजह से उनका जो नॉर्मल शेड्यूल है वो बिगड़ेगा। जो वो काम करते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, और उनके काम न करने की वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको करने से जो हमारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, एटमॉस्फेरिक सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो मैं क्या बोलूंगा? कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इज नॉट एन इको फ्रेंडली सिस्टम। ट्रीज को कट करना ये हमारे लिए कोई बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम नहीं है, है ना? हमारे लिए अच्छा इकोसिस्टम नहीं है ट्रीज को कट करना, ठीक है? मैं ये बात बोल सकता हूं। तो यहां पर ये कहा हुआ है कि सेरिकल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एन इको फ्रेंडली एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज इन द सेरिकल्चर, एक मिनट, एनीबडी एल्स? एनीवन एल्स नो द आंसर? एनीवन एल्स नो द आंसर? आश्वी, अक्षी, भक्ति, दिया, नैन्सी, साची, श्रेया, विश्वा, येशा? No idea about the question? बेटा मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir, your voice is coming. Yes sir, your voice is तो ट्राई तो कीजिए। We don't have any eyes. अरे बेटा, अभी अभी मैंने आपको इको फ्रेंडली का मतलब तो बता दिया। एटलीस्ट कम से कम आप अंदाजा तो लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या। मान लो मैं एग्जाम में दे दूं क्वेश्चन, क्या करोगे, क्या लिखोगे बताओ? और मैं आपको इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, फाइन। लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था। ये प्रूफ करता है कि आप लोगों ने कल का होमवर्क किया नहीं है। मैंने कहा था इसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। और टेक्स्ट बुक अभी अभी खुली है, क्लास के बाद दोबारा घर पे जाके टेक्स्ट बुक खुली नहीं है ना? करना चाहिए। कोई भी होमवर्क अगर आपको दिया जाता है तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। अल्टीमेटली में ये आप लोगों की लाइफ का सवाल है, आप लोगों के बेनिफिट का सवाल है। देखो बेटा, मैं तो आंसर दे ही दूंगा। आई एम हियर टू गिव यू द आंसर, बट द थिंग इज दैट योर मेंटल डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। केवल म्यूट योरसेल्फ। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, द थिंग इज दैट बेटा कि देखो मैं तो आंसर दे ही दूंगा, अभी 2 मिनट लगेगा मुझे आंसर देने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में आगे आपको बढ़ना है।
हमको तो जो बनना था हम बन गए, नाउ इट्स योर चांस, है ना। तो एटलीस्ट आपका डेवलपमेंट तब होगा जब आप अपने ब्रेन को क्रंच करोगे, जब आप अपने ब्रेन को घुमाओगे, उसको प्रॉब्लम में डालोगे और अपने दिमाग को बोलोगे कि तू इसका रास्ता निकाल, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता निकालो, अपने ब्रेन को रिलैक्स मत रहने दो, है ना। अदरवाइज वो रिलैक्स होने की आदत लग जाएगी उसको। दिस इज नॉट गुड। कोई बात नहीं बेटा, चलो, इट्स माय एक्सपेक्टेशन कि नेक्स्ट टाइम आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा। सेरिकल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एन इको फ्रेंडली एक्टिविटी। व्हाई? सी, सेरिकल्चर में आप क्या करते हो? ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट द बोर्ड। मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। नाउ सी चिल्ड्रन, सेरिकल्चर हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस इन विच वी यूज टू चूज द एडल्ट सिल्क मॉथ, जहां पर हम, ये जो आप सेरिकल्चर देखते हो ना पूरा, ये सेरिकल्चर शुरू कहां से होता है? ये सेरिकल्चर शुरू होता है whenever we are choosing the adult female moth। जब आप adult female moth को choose करते हो, that the adult female moth will come, it will lay the eggs, okay, I will choose the adult female healthy moth, okay, so that the eggs will be healthy। वहां से लेकर के जो लास्ट पॉइंट है आपका, that was the reeling, the formation of fibers, वहां तक पूरा आपका क्या होगा? सेरिकल्चर होगा। मतलब सेरिकल्चर तो ठीक है भाई, सिल्क वॉर्म को आप रियर एंड वियर करते हो, लेकिन रियर और वियर आप क्यों करते हो? फॉर द सेक ऑफ सिल्क, सो दैट यू विल गेट द सिल्क, ताकि आपको सिल्क मिले, ठीक है ना। तो सेरिकल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एज ए इको फ्रेंडली, क्योंकि आपने हमारे अर्थ पे रहने वाले किसी एक कैटेगरी के एनिमल को अपने यूज के लिए अर्थ के इकोसिस्टम से अलग कर दिया। बात समझ में आ रही है? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सारे एनिमल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऑल द एनिमल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, सारे एनिमल्स आपस में जॉइंटेड हैं। तो इकोसिस्टम में अगर किसी भी एनिमल को आप सेपरेट कर देते हो, किसी भी एनिमल को अगर इकोसिस्टम से आप अलग कर देते हो, तो वो एनिमल अपना इम्पैक्ट, अपना इफेक्ट उस सिस्टम में नहीं डाल पाएगा। वो एनिमल इकोसिस्टम के बारे में कभी जान ही नहीं पाएगा। इट्स आवर सेल्फिशनेस। भाई क्या हमारे पास पहनने के लिए क्लोथ नहीं है क्या? कॉटन तो है ना हमारे पास, कॉटन मिलता है, वुल मिलता है, तो फिर भी हमें सिल्क के कपड़े पहनने। इट्स आवर विल, ये हमारा विल है, इट्स नॉट ए नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिल्क के कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। वी कैन रिप्लेस इट, बट वी आर नॉट डूइंग इट, ठीक है, एज पर आवर डिमांड, क्योंकि हमें उनके कपड़े अच्छे लगते हैं, शाइनी करते हैं, शाइन करते हैं और काफी ड्यूरेबल होते हैं, काफी दिन तक चलते हैं। चलते क्यों हैं? क्योंकि स्ट्रेचेबल होते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी लाइक द क्लोथ। तो इतने सारे एनिमल्स को आप अलग कर दोगे सिस्टम से, जो एनिमल सिस्टम है उससे इन एनिमल्स को आप अलग कर दोगे। अलग करने के बाद इन एनिमल्स को किल भी कर दोगे। फॉर व्हाट पर्पस? क्यों किल किया आपने? क्या मिला किल करके आपको? सिल्क, केवल सिल्क के लिए। तो किसी भी एनिमल को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, किसी भी एनिमल को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंबाइंडली बहुत बड़े स्तर पे एनिमल्स को किल कर देना, इट्स नॉट अ गुड, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ नॉन इको फ्रेंडली। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, किसी का माइक चालू रह गया है। ये सब बना रहा, चलो ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गया? मैं एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं शॉर्ट में। सिंस यू आर टेकिंग द सिल्क वॉर्म सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल इकोसिस्टम, नॉर्मल इकोसिस्टम से आपने सिल्क वॉर्म को अलग ले लिया है। नॉर्मल इकोसिस्टम में सारे एनिमल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल बड़ा हो या फिर छोटा हो।
लेकिन सेरिकल्चर के केस में क्योंकि आपको सिल्क का प्रोडक्शन करना है ना, भाई आपको सिल्क वर्म चाहिए, ये सिल्क वर्म आगे चल के प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो आपको कोकून देगा, उसको फिर आप गर्म पानी में डाल के आपको बॉईल कर दोगे तो वहां से आपको रीलिंग्स मिल जाएंगी, वहां से आपको फाइबर मिल जाएगा। फिर इस फाइबर को ज्वाइन करके आप थ्रेड बना दोगे, फिर थ्रेड से क्या बनेंगे, कपड़े बन जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो क्योंकि आपको कपड़े पहनने हैं, आपका अपना विल है, इसीलिए आप इन एनिमल्स को अलग कर रहे हो। ठीक है, तो किसी भी एनिमल को उसके नॉर्मल सिस्टम से अलग करना इट्स नॉट अ गुड। भी ऐसा होगा देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ नॉन इको फ्रेंडली। उस नॉन इको फ्रेंडली बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. Clear to everyone? The answer Yes, is clear to sir. everyone or not? चलिए, all of you now please see the discovery of silk on the same page. Discovery of silk. सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई देखो तो। सिल्क प्रोडक्शन बिगिंस इन द चाइना। सिल्क प्रोडक्शन चाइना में शुरू हुआ। सिल्क प्रोडक्शन बिगिंस इन द चाइना ऑलमोस्ट 6000 years ago। लगभग 600 साल पहले, सॉरी 6000 साल पहले, 6000 years पहले चाइना में सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हुआ। भाई सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया, इसका मतलब चाइना सिल्क के बारे में पहले से जानता होगा, उसको सिल्क वर्म के बारे में पहले मालूम चल गया होगा। Then the China has taken a time to understand that how the silk can be separated from the silkworm. सिल्कवर्म से सिल्क को अलग करने के लिए, सिल्कवर्म से सिल्क को अलग करने के लिए हमने किस तरह के चीजें की हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। These things are the matter to be decide और to matter to be understand, है ना। सबसे पहले चाइना ने इसको समझा होगा, समझने के बाद इसको अप्लाई किया होगा, है ना। ये सारी बातें वहां पे हुई होंगी। कब हुआ था ये? 6000 साल पहले हुआ था। सिल्क प्रोडक्शन बिगिंस इन द चाइना ऑलमोस्ट 6000 years ago। चलिए आगे देखिए। लेजेंड डेट्स this back to 2640 BCE to Empress 11th Ling Qi, who discovered that a certain caterpillar cocoon was created from a single strand of shiny thread. मतलब अगर आप इतिहास में पीछे जाएंगे तो लगभग 2640 BC पहले, ओके, वहां पर इम्प्रेस था, दैट वाज 11th लिंग ची। एम्प्रेस मतलब वहां की रानी, एम्परर मतलब होता है शासक, एम्प्रेस मतलब शासिका। आप लोगों ने एसएस में एम्परर पढ़ा होगा ना। Sir, emperor means kingdom. हाँ तो बेटा किंगडम अगर, अरे भाई देखो, ठीक है, एम्परर मतलब किंगडम है, ठीक है, तो शासन आप कहाँ पे करोगे? घर पे नहीं ना, आपका अपना साम्राज्य होगा, आपका अपना किंगडम होगा, तभी तो आप शासन करोगे ना। तो किसी एक एरिया पे शासन चलता था, किसका? Xi Lingqin was the name of that person who was the empress who discovered that a certain caterpillar cocoons, मतलब कुछ caterpillars के cocoons को उसने create किया from the single strand of shiny thread. Shiny thread वो thread जो silkworm बनाता है, वो thread जो silkworm बनाता है, उस thread के अंदर से DNA को कलेक्ट करना, और डीएनए को कलेक्ट करने के बाद उसको वापस से उस डीएनए से उस सिल्क को बनाने वाले एनिमल्स के जैसे फिर से और ज्यादा सिल्क बनाना, ये काम हुआ था।
कब? 2640 BCE में हुआ था। चलिए, शी एंकरेज द सेरिकल्चर एंड सून डेवलप। शी एंकरेज किसने? जी लिंची ने। जी लिंची ने एंकरेज किया। किसको एंकरेज किया? सेरिकल्चर एंड सून डेवलप द प्रोसेस ऑफ रीलिंग थ्रेड फ्रॉम द कुकुन। कुकुन से रीलिंग के थ्रू वहां के थ्रेड्स को सेपरेट करना। कुकुन से रीलिंग के थ्रू थ्रेड्स को सेलेक्ट करना और उस सिस्टम से अलग करना, ये काम शुरू हो गया था। कब? 2640 BCE में। ओके, this was a closely guarded secret for many years। मतलब ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसको गार्ड किया गया था, जिसको छुपाया गया था दुनिया से। तो बच्चों, आप लोग एक बात देख रहे हो यहाँ पे, चाइना कभी भी कोई डिस्कवरी करता है या कोई भी काम करता है तो वो कोशिश करता है कि वो अपने काम को दुनिया से छुपा के रखे, है ना। ये ट्रेंड उसका पुराने हमेशा से रहा है। दिस इज नॉट अ न्यू वन। कोरोना के टाइम पर भी जब कोरोना डिजीज हो गई, वहां पर लोगों को फैल गया, तभी भी उसने किसी को बताया नहीं। 2-3 महीने में जब वहां पर बुरी हालत हो गई, चाइना में ये जो वायरस है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब जाकर के पूरे वर्ल्ड को बताया, है ना। तो छुपाना, चीजों को हाइड करना, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ चाइना, विच इज नॉट अ न्यू वन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट वाज फाइबर टू फैब्रिक खत्म कर दिया है। ठीक है, और बहुत ही जल्द इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF मैं आपको भेजूंगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट वाज केमिकल्स एंड द केमिकल चेंजेस। देखो बेटा, आपके 7th स्टैंडर्ड लेवल पे इसका जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे चैप्टर नंबर 4 के, वो काफी कम होंगे, बट वी विल कम टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द केमिकल एंड द केमिकल चेंजेस। केमिकल, यहाँ पर हम कोई केमिकल का नाम या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले हैं कि मतलब हमारी बॉडी में किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट लाइक दिस, बट वी आर गोइंग टू नो द बेसिक्स ऑफ द रिएक्शन। जब कभी भी अगर आप किसी रिएक्शन का नाम सुनोगे, देन व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ सिंबल, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, ओके, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक changes, equations, what are the chemical equations, what are the chemical changes, physical changes, okay, the chemical substances, those who are responsible, the chemical substances, those who are responsible for the different chemical reactions, उनके बारे में आप जानोगे बस। ठीक है, so need not to be worry about the chapter number 4, chemicals and the chemical changes, okay। Sir? हाँ बेटा। Sir, when you will send the PDF of chapter number 2 worksheet? Today। Okay, sir. ठीक है बेटा, तो चलो इसके बारे में मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ चैप्टर नंबर 4 का। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन द चैप्टर नंबर 4, केमिकल्स एंड द केमिकल चेंजेस। बेटा मैंने आप लोगों को BA1 का सिलेबस बताया है,
चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मालूम है ना आपको? Yes, sir. There are 5 chapters. 1, 2, 3, 4, 5. तो जस्ट इंट्रो हम लोग अभी आज इंट्रो पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास द थिंग्स विल बी कंटिन्यू. चैप्टर नंबर 4, that was the chemical and the chemical changes. Chemical and chemical changes. Chemical and chemical changes. ठीक है. इसमें हम आज जो पार्ट कवर कर रहे हैं हमारा, that was the introduction. Okay. All of you now please listen my word. Children, what do you understand by the chemical and what do you understand by the chemical changes? बच्चों याद रखो, 6th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, 6th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस. याद आ रहा है? Yes, sir. याद आ रहा है. There were physical and chemical changes. There were changing around us. पढ़ा था ना हमने? Number 6. That was चैप्टर नंबर 6, जो आपका चैप्टर नंबर 6 था. कोई बात नहीं. तो चैप्टर नंबर 6 था, that was the changes around us. उसमें बेटा आप लोगों ने हर तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ा था. एंड इफ यू ऑल रिमेम्बर्ड, अगर आप नहीं भूले हो, तो मैंने आपको सभी चेंजेस के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताए थे. फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज. ठीक है. तो फिजिकल को फिजिकल चेंज क्यों बोलेंगे और केमिकल को केमिकल चेंज क्यों कहेंगे, उसके बारे में मैंने काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दिए थे. ठीक है. तो थोड़ा बहुत याद करके बताओ. यहाँ पर एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर यू ऑल आर सेइंग व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? केमिकल एंड द केमिकल चेंजेस. ठीक है. तो व्हाट इज केमिकल? केमिकल का मतलब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, केमिकल क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल चेंजेस? सर मैं ऐसे. यस बेटा. Sir, in chemical changes, the substance is formed to another substance by some reaction. Example for burning of paper is irreversible changes and chemical changes. Chemical changes because when we burn the paper, the new substance are formed. It is called ash, and it is not reversible. Sir, am I right? Yes, बेटा. जनरली हमारे नेचर में जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? केमिकल चेंजेस होंगे. ऑल द इरिवर्सिबल चेंजेस जनरली इन आवर नेचर, मतलब हमारे नेचर में जनरली जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे दे ऑल विल बी द केमिकल चेंजेस. ठीक है. या फिर आप ये बोलो कि ऑल द केमिकल चेंजेस विल बी द इरिवर्सिबल बट ऑल द इरिवर्सिबल चेंजेस आर नॉट द केमिकल चेंजेस. जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इरिवर्सिबल होंगे. क्यों? क्योंकि अगर आपने केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दिया, जैसा कि अभी अभी हरमन ने बताया, अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, तो जब आप पेपर को बर्न करोगे तो क्या आप उसको दोबारा ऐसा पेपर कभी यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे. No, sir. We would not be able to use the same piece of paper, the same material again as a paper. चलो मान लो पेपर के ऊपर आपने कुछ लिख दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर के ऊपर आपने कुछ लिख दिया तो लिखने की वजह से क्या वो पेपर पेट्रोल बन गया? मतलब मैंने उसके ऊपर पेन से कुछ लिख दिया तो वो जो पेपर था वो गैस बन गया, ऑक्सीजन बन गया, डीजल बन गया. ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना. इसका मतलब वो क्या है? वो केमिकल चेंज नहीं है. वो केमिकल चेंज नहीं है. ओके. लेकिन अगर आप पेपर को बर्न कर दोगे
और मैं बोलूं कि भाई जो राख है उस राख को दोबारा से आप व्हाइट पेपर में कन्वर्ट करो, मुझे नया पेपर नहीं चाहिए। जो पुराना वाला पेपर था, इस पुराने वाले पेपर के जो राख हैं, जो एशेस हैं, इस एशेस को ही आप नए पेपर में कन्वर्ट करो। तो क्या ये पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए? किसी के लिए भी पॉसिबल होगा? सर नहीं होगा। नो सर। दैट्स व्हाई जनरली ऑल द केमिकल चेंजेस, ये मेरी बात याद रखना बच्चों, all the chemical changes will be called as a irreversible changes. All the chemical changes will be called as a irreversible changes. Now as far as the chemicals are concerned, बच्चों एक बात याद रखना, the chemicals are the part of our day to day life. Chemical का मतलब क्या होता है? Sir, tell Jeet to mute. Any matter, any material, all the materials those who are around me, मेरे चारों तरफ जितने भी मटेरियल्स हैं, they all will be called as a chemical. The whole world is made up of from the chemical. The whole earth is made up of from the chemicals. We are drinking the water, water is a chemical. We are taking the food, that was the starch, okay? Rice, wheat, okay? This rice and wheat are having the glucose. Glucose का formula क्या होता है? What is this? This is a chemical. We are taking the carbon. We are taking hydrogen. We are taking oxygen. Okay? So all the मेरे चारों तरफ जो भी कुछ है, they all are chemicals. They all are made up of by the composition of chemicals. ये सारे के सारे केमिकल से मिला के ही बने हुए हैं। ठीक? अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे इनमें से किसका यूज करना है और किसका यूज नहीं करना है। तो बेटे हमारे लिए जितने भी यूजफुल चीजें हैं उनको हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे एज ए केमिकल। और जनरली जितने भी चेंजेस होंगे, ऑल द चेंजेस विल बी द ऑल